Can you see the board, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the name of the chapter? Natural resources, vegetation and wildlife. Then open your book. Which Ma'am, subject is this? Which subject is this? At first, you tell me. Either it is geography or history. Geography. Yes, geography. How many chapters I have taught? How many chapters? Two I have taught already. It means it is the next chapter. It is chapter 3. It is chapter 3. It is a very, very interesting chapter. And one more thing I want to share with you that Good morning, ma'am. geography is very much easier than history and civics. In comparison, in comparison, geography is easy. If you understand the fact, you can write very easily. History is a little bit hard. Why? Because all the events, dates, you have to keep it in your mind. But I always share some tricks that how you can learn it very quickly, etc. And I tell it in the form of a story so that you can understand it. And civics is I think, in my opinion, I don't know, whatever your opinion is, that civics is the hardest. So remember that in the previous chapter, so many technical terms were there, which you have to remember. But while you practice it again and again, then nothing is difficult. Even impossible says that I am possible. है ना बेटा? तो हमारा कहने का मकसद ये नहीं था कि आपको डराना. हमारा कहने का मकसद था कि ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़ो तो 40% ज्योग्राफी से, 40% हिस्ट्री से और 20% सिविक्स से आते हैं. तो 40% आपके हाथ में, ठीक है. लेकिन पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ आ जाएगी, सारा आप कह सकोगे, रिप्लाई कर सकोगे. चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं. चैप्टर 3. Chapter number 3. You can see it in the Natural resource, in the board it is written. vegetation and wildlife. Chapter number 3. वो भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये भी विजिबल रहे. It is chapter 3. As the name again reveal that, again we are reading what? Natural resources. In the first chapter, we have read about resources. So in this chapter, we will read especially about vegetation and wildlife. What is the meaning of vegetation? Vegetation means plant life and animal life. Okay? So, in the beginning, the earth was a barren planet. I know that you all know the meaning of barren, where nothing grows. Where nothing grows. There was no life in water or on land. न तो पानी में कोई जीवन था, न तो जमीन पर जीवन.
Gradually, life appeared in the ocean in the form of plants. Gradually means slowly. Life appeared in the ocean in the form of plants. Flora, fauna पढ़े हो ना? बोलो flora means Kingdom. Yes, ma'am. और Plant fauna kingdom. और fauna means Animal kingdom. हाँ Animal kingdom. Animal kingdom. ठीक। तो पहले Animal प्लांट kingdom. के फॉर्म में लाइफ एपियर हुआ कहाँ पर? तो ओशियन में। Slowly various other types of organism appeared on the earth, which were broadly classified as animals and plants. अब एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक कर लो, ये 1 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? क्या पूछा जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? The assemblage of plant species in an environment is known as natural vegetation. I think it is clear. जहाँ पे आपको plant in the environment where you find the assemblage means gathering of what? Plant life is called natural vegetation. Natural vegetation includes forest, grasses and shrubs. Natural vegetation में सारे कुछ आते हैं। आपके जंगल भी आ जाएंगे, आपके ग्रास भी आएंगे, shrub भी आएंगे, herb भी आएंगे, everything. In this chapter, we will study about natural vegetation and wildlife. Temperature and rainfall are two main factors, important factors for the growth of plant. जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी मैं पूछती जाऊंगी कि what factors are responsible for the growth of plant. तो जवाब देना मत भूलना। फैक्टर है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, on which it depend, the growth of the plant depend. जरा सा इसको क्लियर करते हैं। If there is heavy rainfall, dense forest found there. The place where heavy rainfall occur, dense forest found. The place where medium rainfall occur, the vegetation is neither very dense, not thick, not very less. But the place which receives no or low rainfall, less vegetations are found or desert is found. क्लियर है ये बात? अब टेम्परेचर के साथ इसका रिश्ता जोड़ते हैं, रेनफॉल का रिश्ता जोड़ दिए कि हाउ इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ज्यादा बारिश घने जंगल, मीडियम बारिश मीडियम, न ज्यादा न कम पेड़ पौधे, और लो और नो रेनफॉल आइदर डेजर्ट और लेस रेनफॉल। अब टेम्परेचर भी वही बात है। अब इक्वेटर का कहानी लेते हैं। On or place situated on or near the equator is extremely hot. A lot of evaporation take place, so almost every afternoon these places receive heavy rainfall. तो देखो टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ है? रेनफॉल के साथ। क्योंकि हम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं। Evaporation, condensation, then precipitation, and this never ending cycle goes on, which is called
वाटर साइकिल। तो जो प्लेस Water cycle. एक्सट्रीमली हॉट है तो हर जगह से पानी इवेपोरेट हो जाएंगे, और इवेपोरेट होंगे तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो बादल बनेंगे, और बादल फिर जो पहले चैप्टर में भी बताई थी, the tiny droplets cannot flow, they become big and they fall in the form of precipitation। तो यही दो फैक्टर है प्लांट के ग्रो का, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज आपका मैप वर्क है, जो कि उस दिन हम लोग थोड़ा बहुत कर चुके थे, बट मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। जो मैं एक्सपेक्ट की थी कि वैसा रिजल्ट होगा, आप लोगों ने बनाकर मुझे नहीं दिखाया। जो आप नहीं दिखाए तो हम सेकेंड स्टेप उठा नहीं पाए, क्योंकि इसमें एक सेकेंड स्टेप भी दोनों से, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में भी मुझे एक दूसरे तरह की मैप बतानी। आप लोग जल्दी से मुझे बता देना कि किस दिन मैप अरेंज कर सकोगे, वहां ऑनलाइन मैं मैप के एक सेशन लेना चाहती हूँ, जो मुझे हर कोई बनाता हुआ दिखाएगा। यहाँ बैठकर जिसको जो प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट पूछेगा, और डायरेक्ट मुझे बैक कैमरा से दिखाकर वो बनाएगा। इस तरह से बनाकर असाइनमेंट सेक्शन में पोस्ट करने से ये बात नहीं बनेगी। तो किसी भी तरह से कोई भी बच्चे के थ्रू, बड़ों के थ्रू आप पॉलिटिकल मैप, सॉरी मेरा मतलब है फिजिकल मैप आप मंगवा के रखो वर्ल्ड का, 3-4 मंगवा लेना, ताकि कई तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। मैम फिजिकल। हाँ हाँ हाँ, फिजिकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे लीजिए, और आप मैप भी जान जाओगे तो 6 नंबर आपके पॉकेट में। मैम हाँ बोलो। पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है उसी को चलाना अदिति, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास पॉलिटिकल है तो वो यूज कर लेना, फिलहाल अभी उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने से। मतलब क्या अंशुल, ठीक बोल रही हूँ ना अंशुल? और अंशुल चिंता मत करो, 9 चैप्टर मैं पोस्ट कर दूंगी। कल थोड़ी बिजी थी, नहीं कर पाई, आज कर देती हूँ। हाँ मैंने फ्री रहती हूँ तो, या फिर कल तक आपके पास रहेगा वो चैप्टर, क्वेश्चन आंसर सारे। आप डोंट वरी, मुझे सब याद रहता है। उसके बाद फिर सिविक्स के भी जो चैप्टर करवाई उसे भी करूंगी, 1 बाय 1 सारा आपके पास जाएगा। अच्छा, अब ये मैप वर्क है। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। On the basis of the location and the type of climatic condition, forest can be divided into 3 broad types. अब शुरू होती है इसमें से क्वेश्चन आंसर्स के, माने कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, the wood of these trees are very hard, है ना। फिर है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, जिसकी जानकारी उस दिन मैप बनाने में मैं दे चुकी थी। नियर द मेडिटेरेनियन सी दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड। और लास्ट है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। इस सॉफ्टवुड के पास 2 नाम और लिख लीजिए। इसे हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। CONI। माउंटेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहेंगे। नहीं बेटा, सॉफ्टवुड की नाम 3 बता रही हूँ मैं क्या बोली? माउंटेन और बता रही हूँ मैं टेम्परेट सॉफ्टवुड ट्रीज फॉरेस्ट के 3 नाम बता रही हूँ। कभी क्वेश्चन में माउंटेन फॉरेस्ट लिखा रहेगा, कभी क्वेश्चन में सॉफ्टवुड फॉरेस्ट लिखा रहेगा, कभी कोनीफेरस लिखा रहेगा। लिखो CONIFEROUS। आप कोनीफेरस, कौन जानते हो? कौन? आइसक्रीम
जो Yes, अमूल ma'am, जानते हैं। की आइसक्रीम कौन खाते ही होगे, सबके मुंह Yes, में ma'am, पानी जानते आ हैं। रहा होगा। इस लॉकडाउन में मुंह में पानी आ रहा होगा। कोन शेप में होते हैं इसीलिए कोनिफेरस नाम है ना। हाँ हाँ हाँ, ये रहे मेरे कोनिफेरस फॉरेस्ट, झट से मैंने बना दिए। दिख रहा है? Yes, ma'am. दिस इज कोन। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? माउंटेनस एरिया में, ठीक है? माउंटेनस, हाँ, पाइन, फर, सेडार, देवदार, these are the examples, these are the name of these forests. तो और हार्डवुड फॉरेस्ट में भी अब हम लोग सीधे चलते हैं हार्डवुड फॉरेस्ट पर, है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं हार्डवुड फॉरेस्ट। अब जो डिवीजन है वो सब फिर से धीरे धीरे बताती हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, tropical hardwood forests are further subdivided into two groups. Hardwood forests are of two types. First one is tropical evergreen forest, and second one is tropical deciduous forest. ठीक है? एवरग्रीन, जिसे कि आप हिंदी में सदाबहार कह सकते हो। मेरा मन करा थोड़ा सा हंसाने का, थोड़ा हंसा के पढ़ाऊं? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? अच्छा, नो मैम। मैं आदित्य कुमार का एग्जाम्पल ले रही हूँ। बड़ा हंस रहा है। आदित्य कुमार को आप लोग देखो, जिसको भी दिख रहे होंगे वो आज के डेट में जिस तरह का दिख रहा है, आज से 20 इयर्स बाद भी अगर आदित्य इसी तरह का दिखे, बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं हो, तो आप कहोगे कि ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग एवरग्रीन। मतलब कि आप अभी भी एकदम सदाबहार लग रहे हो। तो Yes, ma'am. पेड़ कैसे सदाबहार रह सकते? क्या मुझे कोई बता सकता है? क्या वो कॉस्मेटिक्स लगाएगा? क्या वो पाउडर, काजल और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनेगा? तो वो एवरग्रीन कैसे? वो हर सीजन में ग्रीन उसके ग्रीन जो लीव्स हैं वही उसके ऑर्नामेंट्स हैं, है ना? ग्रीन जो लीव्स हैं वही उसके ऑर्नामेंट्स हैं, वही उसकी सुंदरता है। तो अब इसकी कहानी आप सुन लिए, अब आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगा कि these trees never shed their leaves all together at a time. क्या बोली? मैं कई बार सेंटेंस को पॉज कर के बोली हूँ ताकि एक Yes, भी ma'am. पॉइंट आपसे छूटा नहीं रहे। क्या बोली? Trees of this forest never shed their leaves, never, all together at a time. ऐसा नहीं है कि ये पीले नहीं पड़ते हैं, ये ब्राउन नहीं होते हैं, ये झड़ते नहीं हैं। बुढ़ापा यहाँ भी आता है, बट कभी एक गिरे, कभी दो गिरे, कभी चार गिरे, एक साथ सारे अपने बाल गिराकर गंजे नहीं होते हैं। अब रोनित हंसेगा। आदित्य हंस रहा है। माय गॉड। और डिसीडियस फॉरेस्ट वो क्या है? These forests shed their leaves all together at the same time. What is the purpose? To prevent the loss of moisture. गर्मी के दिनों में इन पौधों से मॉइस्चर इवेपोरेट। डिसीडियस फॉरेस्ट के लीव्स भी बहुत चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स, तो बहुत सारा इवेपोरेशन हो जाता है, उसकी मॉइस्चर, उसकी नमी। आपने कोई वैसलीन खरीद कर दिया है उस पेड़ के पत्ते को कि वैसलीन लगा कर प्रोटेक्शन करे? क्यों नहीं दिया है प्लीज? तो नेचर ने उसको खुद से,
नेचर उसको खुद से प्रोटेक्ट करने की शक्ति दे दी है कि वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ना रहता है बांस, ना बजती है बांसुरी, पत्ते हैं ही नहीं तो इवेपोरेशन कहाँ से होगा, है ना। इस तरह से वो अपने मॉइस्चर जो उसके अंदर है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद फिर से नए 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 ग्रीन ग्रीन पत्ते लग जाते हैं। आपके शहर में, अरे हम लोग किस शहर में रहते हैं? मैम पटना। पटना शहर। पटना। तो यहाँ पर क्या होता है, होली के टाइम में देखना सारे पत्ते अक्सर झड़ते सारे पत्ते पेड़ झड़ बहुत जाते सारे हैं। पेड़ अपने पत्ते गिरा दिए रहते हैं और स्प्रिंग आते आते ही उसमें फिर नए नए पत्ते कोमल कोमल लग जाते हैं। इस बार तुम लोग नोटिस करना। तो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, कुछ हार्ड Yes, है ही ma'am. नहीं जिसको लर्न करने की जरूरत पड़े, नो मैम। बस समझदारी डेवलप कर लो, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। अब आपको एक दो चीज और नाम जानने हैं, जिसमें से कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा, हर एक का दो दो नाम है। आरव आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है? मम्मी पापा किस नाम से बुलाते हैं? शुभ। शुभू। अच्छा शुभ 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 शुभ। शुभ शुभ। और बाहर में आरव। इसी शुभ। तरह से एवरग्रीन ने भी अपने दो नाम रखे हैं, एक रखे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक रखे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। उसी तरह से डिसीडियस फॉरेस्ट ने भी दो नाम रखा हुआ है भाई। सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं कंपटीशन में, तुमने दो रखा है तो मैं भी रख लेती हूँ। और डिसीडियस ने भी अपने कई नाम रख लिए हैं, एक नाम है उसका मॉनसून फॉरेस्ट और एक नाम है डिसीडियस फॉरेस्ट। तो कंपटीशन में दोनों बिल्कुल तगड़े हैं, है ना। अच्छा, तो अब हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पढ़ते हैं। These forests are also known as tropical rainforest because they are confined to tropical region. अब हमको जल्दी से बताओ, ट्रॉपिकल रीजन किस एरिया को कहोगे, कहाँ से कहाँ तक का डिग्रीज में कहलाएगा? साक्षी हड़बड़ा के बोलने की कोशिश नहीं, मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुनी, बोल दी फट से। मैं कही कि इसके लिए इसके जवाब में हमको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है कितने से कितने डिग्री के बीच वाला होगा ट्रॉपिकल रेनफॉल। अब हम अगर पलट के तुमसे पूछ दे साक्षी से कि ट्रॉपिकल रेनफॉल कहाँ होता है, मतलब फिर तुम उसी जगह पे आ जाओगी, फिर उसका क्वेश्चन तो अधूरा ही रह गया। तो हमको थोड़ा सा क्लियर करो कि ट्रॉपिकल मतलब कौन सा एरिया होगा। जरा मेरी भाषा में बोलो, मैंने वो भाषा का इस्तेमाल पढ़ाते वक्त ही कर दिया था। सारिका, अनन्या कौन है क्लास में? सारिका भी है, अनन्या सिंह भी है, अनन्या घोष भी है। हाँ बोलो। नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राम, ये तो बिल्कुल ही अलग जगह चला गया। नंदिका और वो कौन है, समृद्धि ना कौन है उसके पास? क्यों बंद की? चलो ऑन करो। नंदिका, समृद्धि, क्यों ऑफ की कैमरा? अरे ये तो भगोड़ी निकली। अच्छा, तो कोई नहीं बोल पा रहा है, डिग्रीज भी नहीं बता पा रहा है। Oh my God, tropical means on and near the equator and 0 to 10 degree north and 0 to 10 degree south. ये तो आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं बरखुरदार, समझे क्या? ट्रॉपिकल का मतलब नियर द ट्रॉपिक्स, ऑन एंड नियर द इक्वेटर और 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 10 डिग्री साउथ।
कौन है नंदिका के पास? भूल रही हूँ उसका नाम। समृद्धि ना? यस मैम। अच्छा, बड़ी दोस्ती कायम रखी है इन लोगों ने, पिछले साल से साथ साथ पढ़ाई कर रही है। गुड जॉब। थैंक यू। थैंक चलिए, वेरी गुड। हंस रही है। अच्छा, समझ गए आप? तो अब बताती हूँ कि because they are confined to tropical regions where heavy rainfall occurs throughout the year. कहानी अभी भी सुना दी थी कि on and near the equator, extremely hot, almost every afternoon these places receives heavy rainfall. और rainfall कितने होते हैं? Heavy rainfall above 200 मैम 200 सेंटीमीटर। 200 ओके, होल ईयर में। ठीक, अच्छा। Hence the forest always appear green. That is why such forests are known as evergreen forest. अच्छा, they are spread in the area of Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon and Gabon in Africa. ठीक है, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon and Gabon in Africa. They are मैम वेयर आर forests- आइवरी कोस्ट? ये सारा लोकेशन मैं खुद अभी सोच रही थी कि मैं सारा फाइंड आउट करके एक मैप आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। जितने भी हैं अफ्रीका में, ये इतने जितने जगह पे एवरग्रीन को दिखाया है डार्क ग्रीन से, उतने ही जगह पे है। कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा। कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा, तो वहीं आसपास नियर द कोस्ट वो है। ठीक है, और दूसरा देखिए, वेस्टर्न घाट कहाँ है? जल्दी बताओ। उस दिन मैं बताई थी, आप नहीं समझ पा रहे थे। ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ईस्ट में, इंडिया वेस्ट में है। वेस्ट में नाम वेस्टर्न घाट बोली, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट नहीं। और ईस्ट में मैम वेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ईस्ट में है West of ईस्टर्न घाट। देखो बड़ा सुंदर है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट में वेस्टर्न वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की थोड़ी और जानकारी ले लूं। एक तो जान गए कि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। दूसरा क्या जान गए कि ये वेस्टर्न घाट जो है ना, कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है, उसमें कोई कट नहीं है, बल्कि ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स में कट है और वहां से निकली नदियां कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बंगाल। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इंडिया का भी जान गए। इंडिया में एक जगह जाने, वेस्टर्न घाट। दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड। तीसरा है केरला और चौथा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न में म्यांमार ये सब आ गया, जो उस दिन तुम लोग मैप देखकर इंडिया का बता रहे थे, है ना। ये जगह जो पढ़ रही हूँ ना, ये आपके मैप वर्क के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। अच्छा, साउथ अमेरिका का आपको बताया ही नहीं। साउथ अमेरिका में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये है आपका अमेज़न बेसिन। ये क्या है? अमेज़न बेसिन। और यहीं पर आपका ब्राजील भी है। यहीं पर आपका ब्राजील भी है। आप दोनों जगह को एटलस में देख लेना कि अमेज़न बेसिन और ब्राजील किधर है, वो भी साउथ अमेरिका में। तो जब अगले तरह का मैप जो बताना चाह रही हूँ, उसमें यही सब आपको लिखना है। ठीक है अंशुल, तुम्हारे सवाल का जवाब अगले टाइप के मैप में मिलेगा, जिसमें आपको आइवरी कोस्ट भी दिखेंगे, गाना वगैरह, कैमरून, सब कुछ मैं दिखा दूंगी, कोशिश करूंगी दिखा देने की। नेक्स्ट, favorable climatic condition for these forests are heavy and well distributed rainfall 200 centimeter and hot climate throughout the year. The hardwood trees of these forests are very tall. जानते हो कितनी लंबाई होती है? 60 मीटर टॉल होती है, 60 मीटर। और एक दिन में पता है आपका कितना बढ़ता है? नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर। छोटा वाला स्केल देखे हो, छोटा वाला स्केल जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंच होता है, वो एक दिन में उतनी ऊंचे बढ़ जाते हैं, लंबाई इतने तेजी से बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका 15 सेंटीमीटर। एक ही दिन मैम? हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 15 सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर की निशानी है। अब मैथ्स में मैं पढ़ाऊं 15 सेंटीमीटर, इतने लंबा, एक दिन में इतने लंबे हो जाते हैं। ग्रोथ इतनी मैम वो फास्ट लंबा रेट में कैसे होता होती है। है? ठीक है, अच्छा मैम वो बहुत लंबा होता है। क्या बेटा? मैम उसका हाइट बहुत ऊंचा होगा। सूर्यांश, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोल रहे हो? मैम वो बोल रहा है कि फिर तो ट्रीज बहुत लंबे होंगे। हाँ तो 60 मीटर तो बोल ही रही हूँ। मैम इमेजिन करने के लिए एक 3 फ्लोर का हाउस 35 फीट के लगभग होता है। अरे वाह, एकदम अंशुल तो एकदम बड़ा बिल्डर निकलेगा, आर्किटेक्ट। मैम पिछले साल मेरा घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। हाँ हाँ ठीक है। तो मीटर मैं तक तो हो और जाता है। तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ कि तुम इतने अच्छे जानकार हो। इसमें एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत है? ठीक है ना अंशुल, तुम बहुत जानकारी रखते हो। मैंने इस उम्र में इतने मैच्योर हो जाना, इतनी जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड देयर। वहां पे कई स्पीसीज के ट्रीज एक सिंगल एरिया में पाए जाते हैं। These forests are characterized by dense growth of vegetation. Trees have broad leaves. इसके भी trees के broad leaves होते हैं, evergreen के भी। क्यों? To permit transpiration. क्यों? इतनी ज्यादा बारिश से पानी को इवापोरेट करेगा ना, तो बड़े से लीव्स होते हैं कि ट्रांसपिरेशन जल्दी से हो जाए। ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। सम ऑफ द टिपिकल ट्रीज आर, एग्जाम्पल है महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर एंड पाम। और एनिमल क्या पाए जाते हैं? एलिफेंट, लेमूर, मंकी एंड डियर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग के पास 6 मिनट टाइम है, सिर्फ डिसीडियस पढ़ा देते हैं। और डिसीडियस तो जान गए हो, इट्स अनदर नेम इज मॉनसून फॉरेस्ट। दे शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन ऑल टुगेदर, एंड these forests are found in India, Myanmar, South China, East Brazil, and central part of America. These forests thrive in regions where the climate is warm. हमारे यहाँ क्या है? क्लाइमेट वार्म है, गर्म है, with distinct wet and dry season. Wet और dry season यहाँ पर है। Deciduous forest receive, ये लाइन देखो, इसमें ये लाइन आंसर में आएगा। It receives summer rainfall. हमारे यहाँ गर्मी में बारिश होती है ना, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, और तुरंत इसके बाद ही बारिश आएगा। मॉनसून आ ही रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि इस बार मॉनसून जल्दी आएगा। थोड़ी सी बारिश हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर भी लिया है। तो हमारे यहाँ क्या है? समर रेनफॉल है इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और यहाँ कितनी बारिश होती है? बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में अबव 200 और डिसीडियस में 100 to 200. Vegetation in this forest is not as dense as that of the tropical evergreen forest. Evergreen forest जैसे घने यहाँ के जंगल नहीं होते हैं। और deciduous forests have predominantly broad-leaved trees and medium-sized leaves, and they shed their leaves during the dry season to conserve moisture. ये मैं बता चुकी थी। Trees are, यहाँ के trees 60 मीटर टॉल नहीं होते हैं, 30 to 40 मीटर। तो क्या वर्ड लिखोगे? मीडियम साइज के होते हैं। They are of medium size. और कॉमन ट्री का नाम सुनिए, एग्जाम्पल साल, टीक, संडालवुड, बैम्बो एंड शीशम। अब देखो ये नाम क्वेश्चन में आएगा। नेम द डिसीडियस ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया के डिसीडियस पेड़ का नाम क्या है? यूकेलिप्टस। ठीक है, और ये जो आपने साल, टीक ये सब सुना, ये सब लकड़ियां किस काम में आती है? क्या किसी को आइडिया है? मैम फर्नीचर।
Yes, for making furniture. Very good. और बैम्बो, शीशम है ना, शीशम, ये सब फर्नीचर बनाने के काम में बड़ी कीमती लकड़ियां होती है। हाँ, बड़ी कीमती होती है। हाँ, और बैम्बो तो आप जानते हो, इसके तो यूज के क्या कहने बैम्बो। हाँ, घर मकान बनाने में भी हम लोग। The animals found in deciduous forest कौन कौन है हमारे यहाँ की, इमेजिन कर लो, lion, tiger, elephant and numerous kind of reptiles। numerous मतलब कि कई तरह के, reptile मतलब रेंगने वाले जीव। तो आज यहीं पर हम लोग आज का डेट दे देते हैं।